ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھائی اسے چھوڑ دیں، آپ لوگ کیوں اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ ایک مظلوم کی بد دعا آپ لوگوں کو لگے گی۔ وہ اپنے بھائی کی منتیں کرتے ہوئے اسے اس ظلم سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تینوں حیوان بنے اسے بے عزت کرنے میں مگن تھے۔ اس نے بھاگ کر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ پلیز اسے جانے دیں، ایسا مت کریں۔ اس کی بات سن کر اس کے بھائی نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گری۔ اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی اور دوبارہ سے اپنے بھائیوں کو اس گھناؤنی حرکت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب اسے بے عزت کر کے اور سب کے سامنے رسوا کر کے اپنا سر اونچا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک معصوم عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا، گناہ کی سزا ایسے ہی دی جاتی تھی۔ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا تھا اس بیچاری عورت کو بھی یہی سب سہنا پڑ رہا تھا۔ جو گناہ اس نے کیا نہیں تھا اسے اس کی سزا دی جا رہی تھی، وہ بھی بڑے گاؤں کے سامنے۔ ریشما جب اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی روک نہ سکی تو بھاگتے ہوئے گاؤں کے آخری مکان کی طرف بڑھ گئی۔ زور زور سے اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اندر سے چودھری زہیب تیزی سے باہر نکلا اور ریشما کو یوں حواس باختہ اپنے گھر کے باہر کھڑا دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا ہوا ریشما؟ سب خیریت تو ہے؟ تم اس طرح سے اس وقت میرے گھر کے باہر کیا کر رہی ہو؟ ریشما نے سر اٹھا کر ایک نظر اس حویلی نما مکان پر ڈالی۔ گاؤں میں موجود یہ مکان سب سے خوبصورت بنا ہوا تھا۔ چودھریوں کی یہ حویلی، جس کی اونچی دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن تھے، یہاں ایک نمایاں مقام رکھتی تھی۔ چودھری زہیب نے جب اسے گھر کی طرف دیکھتے پایا تو کہنے لگا، کیا تم اس وقت گھر دیکھنے آئی ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا نہیں لگتا، بولو کیا بات ہے؟ ریشما فوراً سے چونکی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ تمہاری بہن نیلم، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے اپنی بہن کا نام سنتے ہی چودھری زہیب ایک دم سے پریشان ہو گیا اور بولا، بتاؤ نا کیا ہوا میری بہن کو؟ نیلم کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ ریشما کی حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اس سڑک کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کے بھائی گاؤں بھر کو جمع کر کے اس کی بہن کی عزت خراب کر رہے تھے۔ زہیب بنا کچھ مزید پوچھے فوراً سے ننگے پاؤں بھاگتا ہوا اس سڑک کی طرف آیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تپتی ہوئی سڑک اس کے پاؤں کے تلووں کو جلا رہی تھی، لیکن اسے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی سڑک کے کنارے پہنچا تو اپنی بہن کو بنا دوپٹے کے بیچ سڑک میں پڑے دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ سامنے کا منظر اسے زندہ دفن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی بہن کے پاس آیا اور اس کے سر پر چادر اوڑھائی، لیکن اسی وقت ریشما کے بھائی آگے بڑھے اور زہیب کو لات مار کر ایک طرف پھینک دیا۔ زہیب اپنی بہن کو بچانے دوبارہ سے آگے بڑھا، لیکن سب باری باری اسے مار کر پیچھے گرا دیتے۔ زہیب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ حویلی کے سارے مکین کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، صرف زہیب ہی پیچھے گھر پر موجود تھا۔ ان کے محافظ اور دیگر لوگ بھی یہاں نہیں تھے۔ اکیلے وہ کب تک ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ ریشما بھی بھاگتی ہوئی وہاں آ رہی تھی۔ اب وہ بھی اپنے بھائیوں کو روک رہی تھی، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک طرف گاؤں والے کھڑے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے اور ایک طرف زہیب اپنی بہن کی عزت بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے اس رسوائی سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ بالکل ہی بے بس ہو چکا تھا۔ اسے مار مار کر ان لوگوں نے ادھموا کر دیا۔ وہ ہر ایک سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، لیکن سب نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے۔ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔
सिर्फ रेशमा ही थी जो उसकी मदद की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अकेले क्या कर सकती थी। आज उसके भाई इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुके थे। उनके अंदर की इंसानियत बिल्कुल मर गई थी। उन्होंने जी भर कर उस लड़की को सबके सामने बदनाम किया, रुस्वा किया, पत्थर मारे और फिर वहां से चले गए। ये सब ज़ुहैब ने अपनी आंखों से देखा था। बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी बहन को इस जिल्लत और रुसवाई से नहीं बचा पाया था। इस एहसास ने उसे अंदर से मार कर रख दिया था। जब सब लोग तमाशा देखकर वहां से चले गए तो रेशमा आगे बढ़ी और नीलम को एक चादर ओढ़ा दी। वो बेचारी नंगे सर बीच सड़क में पड़ी थी। तपती सड़क उसके जिस्म को झुलसा रही थी, लेकिन जो बेइज्जती उसने अभी एक दुनिया के सामने सही थी, उसके आगे ये तपिश कुछ मायने नहीं रखती थी। रेशमा ने आगे बढ़कर नीलम को बमुश्किल उठाया। जख्मों की वजह से वो चलने के काबिल भी नहीं रही थी। ज़ुहैब की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो भी उठ नहीं पा रहा था। रेशमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हालत में क्या करे। बमुश्किल वो नीलम को साथ लिए हवेली तक आई और उसके बाद उसने ज़ुहैब को भी हवेली तक पहुंचाया। वो हवेली के अंदर कदम नहीं रख सकती थी। वो जानती थी कि हवेली के अंदर कदम रखने का क्या मतलब है। इसलिए वो फौरन से गांव के मुंशी के पास आई और उसे सारी बात बताई। गांव के मुंशी ने जैसे ही ये सुना, वो दौड़ता हुआ डॉक्टर को अपने साथ लिए हवेली तक आया। सिर्फ वही था जो हवेली वालों की गैर मौजूदगी में हवेली में दाखिल हो सकता था। उसने फ़ौरन से ज़ुहैब और नीलम की मरहम पट्टी करवाई और फ़ोन करके शहर में अपने मालिक को इत्तला कर दी। ज़ुहैब के वालिदैन और बाकी लोग फिलफोर शहर से गांव के लिए निकल गए। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो एक क़यामत उनकी मुंतज़िर थी। ज़ुहैब किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उस वक्त उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो अपने से ताकतवर लोगों का मुकाबला कर पाता, लेकिन वो दिन उसके दिमाग पर नक्श होकर रह गया था। उसी हादसे की वजह से उसकी बहन ने अपनी जान अपने हाथों से ले ली थी। वो इस सब को कभी भुला नहीं पाया था। उसे लगता था कि वो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर पाया और ये बात हमेशा उसे अंदर ही अंदर से खाती रहती थी। वो अपने अंदर एक नफ़रत और बदले की आग लेकर बड़ा होने लगा। वो 20 साल का नौजवान अब 25-26 साल का हो गया था। उसका रवैया और उसकी आवाज़ दोनों ही बदल चुकी थी। उसके अंदर का इंसान भी शायद मर गया था। उस हादसे ने इसे बहुत मुतासिर किया था। वो कभी भी अपनी बहन की चीखों और इस मंज़र को भुला नहीं पाता था। इतने साल उसने अपने अंदर बदले की आग जगाए रखी और हमेशा सोचता रहता कि किस तरह से बदला लूं। हवेली वाले तो उस दिन के बाद से अपना मुंह छुपाकर गांव में रहने लगे। हर कोई उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहा था। हर एक की ज़बान पर नीलम का चर्चा होता। उस बेगुनाह को इतनी तकालीफ से गुजारकर अब भी उन सबको सुकून नहीं मिला था कि उसकी मौत के बाद उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। रेशमा भी अब बड़ी हो गई थी और उसके दिमाग में भी यह वाक़या अब तक नक्श था। उस दिन के बाद से उसने अपने भाइयों को इज्जत देना ही छोड़ दी। ना तो वो उनसे बात करती और ना ही उनकी परवाह करती। लेकिन उसके भाइयों को लगता था कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। गांव वाले भी ऐसा ही सोचते थे। इस सब के पीछे की वजह क्या थी और रेशमा के भाइयों ने ऐसा क्यों किया, ये बात तो पूरा गांव जानता था। लेकिन ज़ुहैब आज तक कभी भी असल हकीकत को नहीं समझ पाया था, ना ही उसने जानने की कोशिश की थी। ज़ुहैब की बहन नीलम उससे उम्र में 10 साल बड़ी थी। ज़ुहैब को उसने एक माँ की तरह पाला था और वो इससे बहुत प्यार करती थी। शादी होकर दूसरे गांव गई तब भी ज़ुहैब के बारे में ख़बर रखती थी। ज़ुहैब अक्सर ही उसे मिलने के लिए दूसरे गांव चला जाता था। नीलम का ससुराल काफ़ी बड़ा था और वो लोग काफ़ी अच्छे मिजाज के लोग थे। नीलम की शादी हवेली के सबसे बड़े बेटे के साथ हुई थी। ये रिश्ता सरासर बड़ों की मर्ज़ी से हुआ था और इसे उन दोनों ने कबूल करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू की थी एक दूसरे के साथ। नीलम और उसका शौहर दोनों बहुत खुश थे। उसका शौहर एक बड़ा ज़मींदार था। कई एकड़ पर फैली अपनी ज़मीनों को संभालता था। शादी से पहले कई साल वो शहर में रहकर पढ़ाई भी कर चुका था। गांव में उसकी खूब इज्जत थी। वो पहला पढ़ा लिखा लड़का था
इसी लिए सब उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये कहानी उस दिन शुरू हुई जिस दिन नीलम की मंगनी की तकरीब थी। मंगनी की तकरीब नीलम के गांव में रखी गई थी। बहुत बड़े पैमाने पर तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। नीलम हवेली की इकलौती बेटी थी, इसीलिए सब उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे। पूरे गांव को मंगनी की तकरीब में बुलाया गया था। तकरीब का इंतज़ाम देखकर लोग अश अश कर उठे। ऐसी तकरीब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। दोनों तरफ से इस शादी के लिए खूब पैसा बहाया जा रहा था। नीलम के ससुराल वाले भी अपने पूरे गांव को इस तकरीब में लेकर आए थे। ये तमाम लोग अपने गांव वालों से सारी खुशियां बांटने पर यकीन रखते थे और गांव वालों का भी बहुत ध्यान रखते थे। नीलम के ससुराली गांव से एक औरत अपनी बेटी के साथ आई थी, जिसने नीलम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। उसके हसद की वजह से बहुत से ख़ानदान पहले तबाह हो चुके थे और अब उसकी नज़रें नीलम पर पड़ चुकी थीं। अपने हुस्न की वजह से वो पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन अब उस पर बुढ़ापा तारी हो रहा था। अपनी जवानी में उसने बहुत से लोगों का घर तबाह किया था। पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया था और यही लालच उसने अपनी बेटी के दिल में भी भर दिया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी कि उसकी बेटी का हसद और लालच उसे किस हद तक ले जाएगा। इस मंगनी की तकरीब में वो अपनी बेटी के साथ आई थी, चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट सजाए। उसकी इकलौती बेटी उसी की तरह हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। तकरीब में आए मर्द बार बार बेसाख्ता उसकी तरफ देखते थे और वो मर्दों को लुभाने के हुनर से अच्छे से वाकिफ़ थी। इस तकरीब में रेशमा और उसके भाई भी शामिल थे। रेशमा के ख़ानदान की चौधरी ख़ानदान से हमेशा दुश्मनी रही थी। ये दुश्मनी ज़मीनों को लेकर थी और हमेशा ही उन दोनों के बीच कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता था। रेशमा के भाई चौधरी और उसके ख़ानदान को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उस तकरीब में आए थे। रेशमा के सबसे छोटे भाई की निगाह उस तकरीब के दौरान ही उस लड़की पर पड़ी। उसके हुस्न को देखकर वो एक पल को अपनी जगह जम कर रह गया और फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। उस लड़की का नाम कोमल था। रेशमा का भाई उसके पास आया और उससे बातचीत करने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसने कोमल के साथ दोस्ती भी कर ली थी। वो खुद भी दिल फेंक था और कोमल भी ऐसी ही थी, लेकिन एक बात वो बार बार नोट कर रहा था कि कोमल का ध्यान स्टेज पर बैठी नीलम के ऊपर है। वो उसे ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे निगाहों ही निगाहों में निगल लेगी। हसद उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कुछ पल नीलम को देखते रहने के बाद कोमल ने अपनी निगाहें उसके पहलू में बैठे उस जमींदार पर टिका दी जिसे वो अपना बनाना चाहती थी। कोमल जब से पैदा हुई थी तब से उसने जमींदार के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी। जवानी की सरहदों को छूने तक वो उसकी गर्विदा हो चुकी थी। उसने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली थी कि ज़मींदार सिर्फ़ और सिर्फ उसका है। वो इसे हद से ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन वो जानती थी वो उसकी पहुंच से दूर है। कई बार उसने इसका रास्ता रोककर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन ज़मींदार अलग ही तबीयत का मालिक था। वो लड़की बाजी नहीं करता था, इसीलिए उसने कोमल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और यही बात कोमल को बहुत चुभ रही थी। वो उसके पीछे पीछे भागने लगी। कई साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक वो ज़मींदार को अपने हुस्न के जाल में नहीं फंसा सकी थी। उसकी माँ उसे कई बार समझा चुकी थी कि ये इतना आसान नहीं, तुम ज़मींदार का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन वो इस बात को नहीं जान सकी कि उसकी बेटी ने अपने दिल में इश्क की चिंगारी जला ली है। अब वो किसी तौर ज़मींदार से दस्तबरदार नहीं हो सकती। कोमल ज़मींदार को अपना समझती थी। उसने ये मान लिया था कि ज़िम्मेदार उसका है और उसी का रहेगा। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ज़मींदार की शादी किसी और से तय हो जाएगी। बस वो 2 दिन के लिए पास के गांव में मौजूद अपनी खाला के यहाँ गई थी और जब वापस आई तो उस पर क़यामत टूट पड़ी। उसकी माँ उसे खुशी खुशी बता रही थी ज़मींदार की मंगनी होने वाली है, उसका रिश्ता तय हो गया है। जल्द ही दूसरे गांव में बहुत बड़ी मंगनी की तकरीब रखी जाएगी, हम भी वहां जाएंगे। पूरे गांव को बुलाया गया है, देखना कितनी बड़ी शादी होगी, बहुत पैसा मिलेगा। वो खुशी खुशी उसे अपने मंसूबे बता रही थी
लेकिन कोमल के चेहरे की तरफ नहीं देख पाई। यूं लग रहा था जैसे उसका चेहरा जलजलों की जद में आ गया। वो ये खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई और एक एक चीज उठाकर दीवार पर मारकर तोड़ने लगी। उसकी माँ फौरन से उठी और उसके हाथ से चीजें लेकर एक तरफ रखने लगी और उससे कहने लगी, तू पागल हो गई है क्या? कितनी महंगी चीजें ली हैं हमने, कितनी मुश्किलों से पैसे जमा किए थे, तू सारी की सारी चीजें तोड़ रही है, मुफ्त में थोड़ा ही लाए थे। लेकिन कोमल थी कि संभलने की हालत में नहीं थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी और चिल्ला रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल उसके सीने से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया हो। उसकी माँ उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। कई घंटे बैठकर वो रोती रही और उसके बाद उसने दिल ही दिल में तहैया किया कि मैं ज़मींदार को किसी का नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ ज़मींदार को इस बात की कोई खबर नहीं थी और ना ही उसे इस बात से कोई लेना देना था। वो अपनी मंगनी की तैयारियों में पूरे ज़ोरों शोर से मसरूफ़ था। कई घंटों के रोने धोने के बाद कोमल ने अपनी माँ से पूछा, उसकी मंगनी किससे हो रही है? जब उसकी माँ ने इसे बताया कि पास के गांव के चौधरी की इकलौती बेटी नीलम से, तो इसका नाम सुनते ही हसद की एक तेज़ लहर कोमल के दिल में सरायत कर गई। उसने नीलम नाम का कांटा अपने दिल में उतार लिया। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। कोमल रात के वक्त चुपके से अपने घर से बाहर निकली। उसकी माँ गहरी नींद में थी। कोमल का रुख डेरे की तरफ था। वो जानती थी कि ज़मींदार इस वक्त डेरे पर बिल्कुल अकेला होगा। अक्सर ही वो बैठकर कोई ना कोई किताब पढ़ रहा होता था। यही सही वक्त था। वो इसे किसी न किसी तरह से अपने हुस्न के जाल में उलझा ही लेगी। यही सोचकर वो डेरे की तरफ बढ़ गई। करीब जाने पर उसे सामने बैठा ज़मींदार नजर आया। बेसाख्ता कोमल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आगे बढ़कर उसने उससे बात करना चाही, लेकिन उसी वक्त उसकी निगाह उसके हाथ में थामी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर नीलम की थी। कोमल का हलक तक कड़वा हो गया। न जाने इस लड़की से मेरी जान कब छूटेगी। फिर वो ज़मींदार से मिले बिना ही घर आ गई। वो अपने दिमाग में कोई और मंसूबा बना रही थी। थोड़े दिन बाद उसकी मंगनी में जाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसकी माँ हैरान हुई कि कुछ दिन पहले तो ये रो रही थी और अब खुशी खुशी उस मंगनी में जा रही है। मगर उसने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि कोमल का मूड बिगड़ जाए और वो वहाँ जाने से मना कर दे। बहरहाल दोनों की मंगनी बहुत शानदार तरीके से हो गई और उसी मंगनी में रेशमा के भाई से कोमल ने अपनी दोस्ती बना ली। रेशमा के भाई को देखते ही कोमल समझ गई थी कि वो एक लालची और दिल फेंक इंसान है। वो अपने मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर सकती थी। मंगनी की तकरीब ख़त्म होने के बाद भी अक्सर ही वो उस गांव में आकर रेशमा के भाई से मुलाकात करती। दोनों के बारे में गांव में चर्चे होने लग गए। रेशमा ने कई बार अपने भाई से कहा कि वो लड़की ठीक नहीं, उससे दोस्ती मत बनाओ, लेकिन रेशमा के भाई ने उसकी कोई बात ना सुनी। रेशमा पूरी तरह से अपने भाइयों के रहमो करम पर थी, क्योंकि उसके माँ बाप की वफ़ात बहुत साल पहले हो गई थी। उसके दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे और अब एक ही भाई था जिसकी शादी होना बाकी थी। उसकी भाभियाँ उस पर खूब जुल्म करती थीं और उसे दबा कर रखती थीं। फिर भी रेशमा अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनका भला ही सोचती थी। बेशक रेशमा के ख़ानदान और चौधरी ख़ानदान के बीच में कभी बन नहीं पाई थी, लेकिन स्कूल के वक्त से ही रेशमा और ज़ुहैब के बीच में अच्छी दोस्ती थी। रेशमा कब ज़ुहैब को पसंद करने लगी उसे पता ही नहीं चला। हर गुज़रते दिन के साथ उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वो आपस की दुश्मनी के बारे में अच्छे से जानती थी, लेकिन उसके बावजूद उससे मोहब्बत कर बैठी थी। उसको एक उम्मीद सी थी कि दोनों ख़ानदानों के बीच जो भी मसले हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और वो एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। वो जानती थी ज़ुहैब भी उसमें दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो दोनों गांव वालों के सामने दुश्मनों की तरह ही रहते थे। बाद में ज़ुहैब शहर पढ़ने चला गया और रेशमा की भाभियों ने उसका स्कूल छुड़वा दिया। रेशमा घर में चूल्हा चौकी करने लगी। एक दिन उसका भाई कहने लगा, मैं कोमल से शादी करना चाहता हूँ। अभी नीलम की शादी में 2 महीने का अरसा बाकी था
और कोमल उससे पहले पहले शादी कर लेना चाहती थी। उसके दिमाग में जो मंसूबा चल रहा था वो सिर्फ वही जानती थी। उसने अपनी माँ पर बहुत जोर दिया और इधर रेशमा के भाई ने घर वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यूं रेशमा और कोमल के रिश्ते की बात शुरू हो गई। दोनों तरफ से फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गईं और नीलम की शादी से ठीक 1 हफ्ता पहले रेशमा के भाई और कोमल की शादी कर दी गई। शादी के बाद रेशमा का भाई पूरी तरह से कोमल के चुंगल में फंस चुका था। जो कोमल कहती वो सिर्फ वही करता। कोमल इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि ज़ुहैब और रेशमा के बीच अच्छी दोस्ती है। ऊपर से वो अच्छा बनने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन सब से हसद करती थी। उसे ये भी अच्छे से पता था कि चौधरी ख़ानदान और रेशमा लोगों के ख़ानदान के बीच दुश्मनी है। वो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपना बदला लेना चाहती थी। उसे नीलम से शदीद नफ़रत थी, जिसने इससे इसकी मोहब्बत हथिया ली थी। उसका ख्याल तो यही था कि उसने मोहब्बत हथियाई है, लेकिन वो इस बात पर कभी गौर नहीं करती थी कि ज़मींदार तो उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखता नहीं। कोमल की माँ उसके इरादों से बिल्कुल बेखबर थी, वरना शायद उसे बर्बादी से रोक देती। लेकिन अब उसकी बेटी इस राह पर चल पड़ी थी जहाँ से उसके कदमों को वापस मोड़ना तकरीबन नामुमकिन सी बात हो चुकी थी। ये सब वो एक मंसूबे के तहत ही कर रही थी। पहाड़ी की दूसरी तरफ रहने वाली एक जादू करने वाली औरत से उसने राब्ता किया और नीलम और ज़मींदार पर ख़ास जादू करवा दिया। नीलम की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ रेशमा का भाई कोमल को पाकर इतना खुश था कि वो जो कहती फ़ौरन से आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन कर लेता। एक दिन कोमल ने वो खेल खेला जिसने 3 घरों को बर्बाद कर दिया। कोमल इस सब खेल में ज़मींदार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत में क्या लिखा है। जब वो अपना खेल खेलने जा रही थी तभी अचानक से ज़मींदार की मौत हो गई। खेतों में काम करते हुए उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। कोमल पर यह खबर बिजली बनकर गिरी थी। नीलम की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन कोमल ने इस हालत में भी नीलम पर जादू जारी रखवाया। नीलम जब अपने ससुराल से वापस अपने घर आई तो कोमल उसकी खैरियत मालूम करने के बहाने वहाँ चली गई और उसने चोरी छुपे उसकी कुछ ज़ाती चीज़ें चुरा ली और कुछ दिन बाद ही नीलम को बहाने से नदी किनारे ले आई। कोमल के साथ एक लड़का और भी था जो उसके ही गांव का था और चंद पैसों के बदले उसने कोमल की बात मानने का फैसला किया था। नीलम की जहनी हालत जादू की वजह से बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कोमल की हर बात आराम से मानती जा रही थी। उसने नीलम के घर से जो भी चीज़ें चोरी की थीं वो उस लड़के के घर पर रखवा दी और यहाँ पर अपने कपड़े फाड़ कर चिल्लाने लगी। नीलम घबरा गई कि ये अचानक से चिल्ला क्यों रही है। पूरे गांव वाले वहाँ जमा हो गए। रेशमा का भाई भी भागता हुआ वहाँ आया। उन दिनों नीलम के घर वाले किसी काम से शहर गए हुए थे। हवेली में कोई नहीं था। उन्हें वापस आने में 1 हफ्ता लगना था। कोमल ने नीलम पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इस लड़के के साथ गलत रिश्ता बना रही थी। मैंने रोका तो इस लड़के के ज़रिए मेरी इज्जत पर हमला करवाने की कोशिश की और नीलम और उस लड़के का बहुत लंबे अरसे से चक्कर है। लड़के ने भी नीलम के इस्तेमाल की चीज़ें लाकर दिखाई। सब ने उस पर भरोसा कर लिया और रेशमा के भाइयों का गुस्सा चौधरी ख़ानदान के ख़िलाफ़ मज़ीद बढ़ गया और फिर उन्होंने नीलम को बीच गांव में रुस्वा किया और उसका दुपट्टा उतार कर उसे खूब मारा। नीलम इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और अपने हाथों से अपने आप को ख़त्म कर लिया। रेशमा जानती थी कि कोमल ने साजिश की है। कुछ अरसे बाद कोमल एक मौजी मर्ज में मुब्तला होकर बिस्तर पर पड़ गई। उसकी हालत हद से ज़्यादा बुरी थी। रेशमा की दोनों बड़ी भाभियाँ, जो कि कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, जब से कोमल इस घर में आई थी तब से उसने सब पर अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी थी। अब जब वो बिस्तर पर पड़ गई तो उसकी दोनों बड़ी भाभियाँ बहुत खुश हुईं और कोमल को हर तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। रेशमा चुपचाप ये सब देखती रही। वो सब के सब अपने किए को भुगत रहे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती थी, ना ही वो इनकी मदद करना चाहती थी।
उनकी वजह से ही नीलम की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई थी। उसे कोमल को देखकर नफरत महसूस होती थी। कोमल की माँ अपनी बेटी के गम को सहार न सकी और इस दुनिया से चली गई। अब कोमल बेयारो मददगार चारपाई पर पड़ी रहती। उसका शौहर जो हमेशा उसका गर्विदा रहता था, अब उसे छोड़कर दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने लग गया। कोमल तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए दूसरों की मोहताज थी और दूसरे उसे ताने मारते, उसके काम करते थे। कोई भी उसके करीब आना पसंद नहीं करता था। गांव में एक लड़की रखी हुई थी जो कोमल की देखभाल करती थी, लेकिन वो भी कई कई दिन तक उसके पास नहीं जाती। कोमल के पास से बदबू उठती रहती। एक दिन आकर वो सफाई कर जाती और उसके बाद पूरा हफ्ता वापस ना आती। उसका कहना था कि कोमल दूसरे मरीजों की तरह नहीं है, बल्कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। मुझसे तो उसके करीब भी नहीं जाया जाता। फिर एक दिन कोमल के शौहर ने सोचा कि उसे अलग कर दिया जाए। गांव के बिल्कुल कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा बनाकर कोमल को वहां मुंतकिल कर दिया गया। वहां उसे खाने पीने का सामान भी दे दिया जाता था, वरना वो ऐसे ही पड़ी रहती थी। उसका ऐसा इबरतनाक अंजाम देखकर गांव वाले कानों को हाथ लगाते थे। हालांकि जिस वक्त नीलम पर जुल्म किया जा रहा था, ये गांव वाले उस वक्त भी खामोश खड़े तमाशा देख रहे थे। दूसरी तरफ रेशमा के दिमाग और दिल में हमेशा ज़ुहैब रहता था। उसके घर वाले चाहते थे कि अब रेशमा की शादी कर दी जाए। उसकी भाभियां उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थीं। रेशमा जानती थी कि उसकी भाभियां उसके लिए कोई ख़राब रिश्ता ही तलाश करके लाएंगी, क्योंकि वो रेशमा को कभी भी खुश नहीं देख सकती थी। रेशमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से अपने घर में ये बात कहे कि वो ज़ुहैब को पसंद करती है। पहले ही इतना सब हो गया था, और अब अगर वो ये बात कहती तो उसके भाई शायद उसे मार ही देते। मगर वो किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ उसे कुछ पता नहीं था कि ज़ुहैब क्या सोच कर बैठा है। उसके ख्याल में वो इसे पसंद करता है और इसी से शादी करेगा। बस वो उसी की तरफ से किसी इशारे की मुंतज़िर थी। इतने सालों में ज़ुहैब ने उसे कोई बात नहीं की थी, बस खामोशी से चुपचाप उसे देखता और आगे बढ़ जाता। रेशमा को लगता कि अपनी बहन के गम में वो अब तक मुब्तला है, और जाहिर सी बात है उसकी बहन के साथ जो कुछ हुआ था वो इसके भाइयों ने ही किया था। तो रेशमा उसके रवैये को नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ज़ुहैब उसके बारे में क्या सोच रखता है। कुछ दिन बाद ज़ुहैब ने एक लड़के के हाथों इसे पैगाम भिजवाया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इतने सालों बाद ज़ुहैब की तरफ से इस तरह का पैगाम मौसूल हुआ था। रेशमा तो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा कि ज़ुहैब इससे शादी के बारे में बात करना चाहता है। वो खुशी खुशी तैयार होने लगी और ज़ुहैब की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। ज़ुहैब ने उसे एक पुराने मकान में बुलाया था जो गांव से काफ़ी फासले पर मौजूद था और एक सुनसान सी जगह थी। वहाँ पर कोई भी आमतौर पर आता जाता नहीं था। वो वहाँ पहुंची तो देखा कि ज़ुहैब वहाँ खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। रेशमा ने जब उसे मुस्कुराते देखा तो खुशी से पागल हो गई। वो तेज़ तेज़ कदमों से उसकी तरफ चली आई। इसे लगा वो आज भी इसे पसंद करता होगा, लेकिन ज़ुहैब ने तो दरअसल उसे बदला लेने के लिए इसे वहाँ पर बुलाया था। इस बात से रेशमा बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। ज़ुहैब ने रेशमा से कहा, हम अंदर जाकर बात करते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो उसे बंद कमरे में ले गया और रेशमा की तरफ मुड़कर बोला, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ये सुनकर रेशमा परेशान हो गई। उसे ज़ुहैब की बात समझ न आई। उसी वक्त ज़ुहैब ने उसकी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। रेशमा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ुहैब उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता था और इस वक्त ये भी भूल गया था कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसे ही बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़ुहैब हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। उसे जो सामने नज़र आ रहा था वो उसे ही सच मान रहा था। वो नहीं जानता था कि कोमल ने कैसी साजिश रची थी। रेशमा उसके सामने मुसलसल मिन्नतें कर रही थी।
लेकिन ज़ुहैब की निगाहें उसके जिस्म की तरफ थीं। वो इसे बेइज्जत करके बदला लेकर अपने अंदर लगी आग को ठंडा करना चाहता था। उसे एक यही रास्ता नजर आ रहा था। वो सोच रहा था कि जब रेशमा की इज्जत खराब होगी तो उसके भाइयों को पता चलेगा कि उसकी बहन के साथ गलत करने का मतलब क्या था। ज़ुहैब बदले की आग में जलता हुआ उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार ठोकर की आवाज़ सुनाई दी और फिर ठोकरें मुसलसल बढ़ती गईं और दरवाज़ा टूट गया। कोई अंदर आया और ज़ुहैब को धक्का देकर रेशमा से अलग किया और उसके ऊपर चादर ओढ़ा दी। रेशमा ने सर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो तो नीलम का देवर था। उसने उसे नीलम की शादी के मौके पर देखा था। ज़ुहैब भी उसे वहाँ देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ज़ुहैब की तरफ बढ़ा और कहने लगा, मैं सिकंदर हूँ, मुझे पहचाना? तुम्हारी बहन का देवर। ज़ुहैब बोला, हाँ हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब सिकंदर ने उससे कहा, तुम जोश में होश खो रहे हो, तुम्हें हकीकत का बिल्कुल भी इल्म नहीं। फिर उसने इसे कोमल की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया। हकीकत जानकर ज़ुहैब सर पकड़ कर बैठ गया। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो रेशमा से नज़रें भी मिला सके। फिर उसने सिकंदर से पूछा कि तुम्हें हकीकत किस तरह पता चली? तो सिकंदर ने उसे बताया, कोमल ने जिस लड़के को अपने मंसूबे में शामिल किया था और जिस औरत से जादू कराया था, वो दोनों हमारे ही गांव के हैं। मैं जानता था कि कोमल उन दोनों से मिलती है, इसलिए मैंने सबसे पहले उन दोनों से पूछ-गछ की। इतने साल में सिर्फ इसी की तलाश में रहा था कि हकीकत क्या है, और अब जाकर मुझे हकीकत पता चल गई। मैं तुम्हें वही बताने आया था। तभी मुझे पता चला कि तुम रेशमा को लेकर यहाँ आए हो। कम से कम तुम्हें इस तरह का बर्ताव तो इस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था। तुम तो इसे बहुत पसंद करते थे, और अब अचानक तुम यूं पेश आ रहे हो जैसे सब कुछ इसने करवाया हो। तुम्हें बदला लेना है तो उन लोगों से लो जिन्होंने गलत किया। इस तरह की रिवायात को छोड़ दो। जो गुनाह करता है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। ये कहकर वो रेशमा को साथ लिए वहाँ से निकल आया। ज़ुहैब ने रेशमा को पीछे से आवाज़ दी, लेकिन रेशमा ने मुड़कर उसे एक भी बार नहीं देखा। ज़ुहैब ने बदले की आग में ये भी ना सोचा कि वो किसी की इज्जत को ख़राब कर रहा है। रेशमा के दिल से उसी वक्त ज़ुहैब उतर गया। वो घर से बाहर आई और सिकंदर से कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन सिकंदर ने उसे रोक लिया और कहा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं रहेगा। तुम जानती हो, तुम्हारे भाई तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। गांव भर में ये बात फैल चुकी है कि चौधरी ज़ुहैब और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, और ये सब कुछ तुम्हारी भाभियों ने फैलाया है, और वो तुम्हारे भाइयों को भड़काकर तुम्हारे पीछे भेज चुकी हैं। अब एक ही जगह है जहां तुम महफूज रह सकती हो। तुम्हें मेरे साथ मेरी हवेली चलना होगा। यकीन करो, मैं ज़ुहैब की तरह तुम्हारी इज्जत पर हमला नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ पर मेरी माँ और बाप दोनों हैं। तुम उनके पास रहोगी, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। उसकी बात सुनकर रेशमा सोच में पड़ गई और फिर सर हिलाकर उसके साथ उसके गांव चली आई। हवेली में लाकर सिकंदर ने उसे अपनी माँ के हवाले किया और कहा कि आज से ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है और हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। अब मैं मज़ीद किसी तरह का नुकसान नहीं मोल लेना चाहता हूँ। रेशमा उसकी बात को समझ नहीं सकी। बहरहाल कुछ दिन तक वो वहीं पर रही। गांव में उसकी तलाश जारी थी। चौधरी ज़ुहैब भी उसको ढूंढ रहा था। वो इससे माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में जो कदम उठाया था, उसके बाद वो अपनी ही निगाहों में गिर चुका था। रह रहकर उसे पछतावा हो रहा था।
लेकिन वो एक बात से अच्छे से वाकिफ था कि अब रेशमा उस पर कभी भी एतबार नहीं करेगी। उसने सालों का एतबार खो दिया था। उसे याद आया कि जब उसके भाई नीलम को भरे गांव में बेइज्जत कर रहे थे तो उस वक्त सिर्फ रेशमा ही थी जिसने उसकी बहन को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और अब वो उसे ही सजा देने निकल पड़ा था। दूसरी तरफ सिकंदर रेशमा को अपनी माँ के हवाले करके खुद शहर चला आया। शहर में उसका अपना एक फ्लैट था। अक्सर ही वो अपने भाई के साथ उस फ्लैट में आता था। उसे अपने भाई की याद सता रही थी। वो रेशमा को एक लंबे अरसे से पसंद करता था। उसने पहली बार उसे अपने भाई की मंगनी में देखा था, लेकिन उसे कुछ दिन बाद ही अंदाज़ा हो गया कि रेशमा ज़ुहैब में दिलचस्पी रखती है। इसलिए उसने चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लिए थे। लेकिन अब किस्मत ने उसे एक मौका दिया था। वो रेशमा को सोचने का वक्त देना चाहता था और उसकी हिफाजत को भी यकीनी बनाना चाहता था। दूसरी तरफ रेशमा हवेली में रहते ये सोच रही थी कि आखिर इस अनजान ने इसकी इज्जत क्यों बचाई, लेकिन इस सवाल का जवाब उसे मिल नहीं रहा था। सिकंदर के लिए उसके दिल में इज्जत बहुत बढ़ चुकी थी। उसके माँ बाप इसका बहुत ध्यान रख रहे थे। कभी भी उन्होंने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनके बेटे का घर इसके भाई की वजह से ही टूटा है, और ना ही कभी इस बात का इल्ज़ाम इसे दिया। इस बात का तो वो लोग जिक्र ही नहीं करते थे। रेशमा पूरी तरह से उनकी अच्छाई की गर्विदा हो गई। दूसरी तरफ ज़ुहैब को जब पता चला कि वो सिकंदर की हवेली में है तो उसने कई बार रेशमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रेशमा ने उससे मिलने और उसे देखने से मना कर दिया। वो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उसे ज़ुहैब से सख्त नफ़रत महसूस होती थी। उसे लगता था कि ज़ुहैब भी उसके भाइयों के जैसा ही है। मौका मिलने पर उसने अपना असल रूप दिखा ही दिया। सिकंदर काफ़ी अरसे बाद जब हवेली आया तो रेशमा उसे एक अलग ही रूप में नजर आई। उसके घर में इस तरह से रह रही थी जैसे सालों से इसी घर की फर्द हो। वो बेख्तियार उसे देखकर मुस्कुरा उठा। वो यहाँ पूरी तरह से घुल मिल गई थी। उसने इरादा कर लिया था वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। इतने दिनों में उसे एक बात का जवाब तो मिल गया था कि सिकंदर ने उसकी इज्जत क्यों बचाई। वो समझ गई थी कि वो इसे पसंद करता है। अब वो सिकंदर की तरफ से इजहार की मुंतज़िर थी कि कब वो आकर इससे अपने दिल की बात कहता है। और फिर सिकंदर ने हिम्मत करके अपने दिल की बात उससे कह ही दी। रेशमा उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर बेइख्तियार खुद पर नाज करने लगी, और फिर उसने सिकंदर को हाँ कर दी। वो जानती थी कि सिकंदर के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। अब वो एक नई ज़िंदगी में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दूसरी तरफ उसके भाइयों के घर हालात बहुत ख़राब हो गए। दिन ब दिन उनके घर झगड़े बढ़ने लग गए। रोज़गार चला गया, फसलें ख़राब हो गईं। एक मासूम लड़की के साथ उन्होंने जो कुछ किया था उसकी सज़ा अब उन्हें भुगतना पड़ रही थी। चौधरी ज़ुहैब एक दिन चुपचाप अपनी हवेली हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से दूसरे शहर चला गया। वो अब इस दर्द के साथ यहाँ नहीं रह सकता था। उसे सिकंदर और रेशमा की शादी के बारे में जब से पता चला था तब से वो बेचैन हो गया था। अब वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने अपना सामान बांधा और कभी ना वापस लौटने के लिए चला गया। दूसरी तरफ रेशमा और सिकंदर की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। वो दोनों इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे और अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुके थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔